નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું છઠ્ઠા ચેપ્ટરને અંતે આપવામાં આવેલા આપણા ભાષા સજ્જતાની અંદર બે વ્યાકરણના જે ટોપિકો હતા એમાં પેલું વિશેષણ અને તેના પ્રકારો, બીજો ટોપિક લિંગ પરિવર્તન, અર્થાત એ બંને વ્યાકરણના જે ટોપિકો છે એનો અભ્યાસ આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરની અંદર કરી ચૂક્યા છે. તો આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણું પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આગળનું જે ચેપ્ટર છે, આગળનું જે પ્રકરણ છે, પ્રકરણ નંબર 7, જેનું શીર્ષક છે સોચ અપની અપની. તો મિત્રો, સોચ અપની અપની એ જે ચેપ્ટર છે જે વાદ વિવાદ અંતર્ગત ये આપવામાં આવ્યું છે. तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को शायद पता होगा कि भी किसी कोई एक विषय पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जब तर्क वितर्क होते हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर गुजराती में हम दलीलबाजी कहते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति की अपनी सोच, अपने विचार अलग अलग होते हैं. इसलिए कोई एक विषय पर कोई एक व्यक्ति अपना मत जो रखता है, अपना विचार जो रखता है, उनके खिलाफ कोई अन्य व्यक्ति जो होता है उसका मत, उसका विचार, यानी कि उसका मानना उससे कुछ अलग भी हो सकता है. तो इसी प्रकार ये जो सोच अपनी अपनी, यानी कि विचार પોતપોતાનો, એવું કહે ને આપણે ગુજરાતી, ભાઈ વિચાર પોતપોતાનો, એ અંતર્ગત આપણને આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણી તર્ક શક્તિને વિકસાવવા માટે, આપણી વિચાર શક્તિ છે એને વિકસાવવા માટે સરસ મજાના કેટલાક વિષયો આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એવા આપવામાં આવ્યા છે કે જેના માધ્યમથી દરેક વિદ્યાર્થી છે પોતપોતાનો વિચાર પોતપોતાની રીતે, પોતપોતાની માન્યતા પ્રમાણે અથવા તો પોતપોતાના મત પ્રમાણે એ રજૂ કરી શકે, એના માટેનો એ વાદ વિવાદ અંતર્ગત સરસ મજાનો એ પાઠ, એ પ્રકરણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપવામાં આવ્યું છે. અને ખાસ કરીને તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ટીવીની અંદર, ટેલિવિઝનની અંદર ઘણી બધી એવી ડિબેટ એ આપણે જોઈએ છે. ખાસ કરીને ટીવીની અંદર કોઈ વિષય ઉપર, કોઈ મુદ્દા ઉપર જ્યારે ચર્ચા હાલતી હોય ત્યારે સામસામા પક્ષ દ્વારા આપણે ટીવી ઉપર ડિબેટ જોઈએ, જેને આપણે હિન્દીમાં બહસ કહીએ છીએ. તો એક વ્યક્તિ છે પોતાનો વિચાર છે, પોતાનો પક્ષ રાખીને પોતાની માન્યતાને વધારે મજબૂતાઈથી એ રજૂ કરતો હોય છે, જ્યારે સામેનો વ્યક્તિ છે એ પોતાના વિચારો દ્વારા એ જે પોતાનો મત છે એ પોતાના મતને એ વધારે એ મજબૂતાઈથી એ સામેના વ્યક્તિને ઉપર પોતાના વિચારને વધારે મજબૂત બનાવવા માટેનો એ પોતાનો મત છે, પોતાનો અભિપ્રાય છે અથવા તો પોતાનો વિચાર જ્યારે રખતો હોય એ જ સોચ અપની અપની, કે જે તમે ટીવીની અંદર આવી ઘણી બધી ડિબેટ, બહસ, ખાસ કરીને રાજકારણના ક્ષેત્રની અંદર આપણે જોઈએ ને તો એમાં બે પક્ષો વચ્ચે સામસામે, એ ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય, કે આપણે ટીવીની અંદર જોતા હોય ત્યારે પેલો પોતાના પક્ષને વધારે મજબૂતાઈથી રજૂ કરતો હોય, અર્થાત પોતાની ખૂબીઓને દર્શાવે અને ખામીઓને દબાવવાનો પ્રયાસ કરે, જ્યારે સામેનો વ્યક્તિ છે એ સામેના વ્યક્તિએ જે ખામીઓ દર્શાવી અને પોતાની ખૂબી સ્વરૂપે અને પોતાની ખામીઓને ઢાંકવાનો અથવા તો એને છુપાવવાનો પ્રયાસ કરીને સામસામે આ પ્રકારની ડિબેટ અથવા તો બહસ આપણે ટીવી ઉપર જોઈએ છીએ. તો મિત્રો, અહીંયા પણ આપણને એ પ્રકારની જ આપણી બૌદ્ધિક શક્તિને વિકસાવવા માટેની એ વાદ વિવાદ અંતર્ગત કેટલાક વિષયો આપવામાં આવ્યા છે. ઘણા બધા વિષયો, ખાસ કરીને આપણે એવું કહીએ ગ્રામ્ય જીવન અને શહેરી જીવન. તો તમારા મતે તમે કયું કે ગામડાનું જીવન સારું
શહેરનું જીવન સારું, શહેરમાં શું શું ફાયદા અથવા તો શું શું સુવિધાઓ મળે, ગામડાની અંદર શું શું તકલીફો પડે, સાથે સાથે શું શું સુવિધાઓ મળે, એમ ટૂંકમાં પોતપોતાના મત પ્રમાણે એ જુદા જુદા વિષયો છે એને આપવામાં આવ્યા. તો જોઈએ મિત્રો અહીંયા 7મું ચેપ્ટર છે, તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક સામે રાખજો જેથી કરીને તમારે અહીંયા એ જે ડિબેટ છે, જે બહસ છે, એમાં ચિત્રને આધારે, કારણ કે 2 ચિત્રો આપેલા છે, એ ચિત્રના આધારે તમારે તમારા પોતાના વિચારો છે અહીંયા व्यक्त करवाना है. तो किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है. એટલે કે કોઈ એક વિષય ઉપર દરેક વ્યક્તિના પોતપોતાના વિચાર, તર્ક, નીચે પોતાની વાત દ્વારા, પોતાના વિચાર દ્વારા અથવા તો પોતાની વાણી દ્વારા, અભિવ્યક્તિ એટલે મિત્રો વાણી, કે ભાઈ પોતાના વિચારોને વાણી સ્વરૂપે જ્યારે સામસામે તર્કને રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે એને આપણે વાદ વિવાદ કહીએ છીએ. वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है. જેમ મેં તમને વાત કરી એમ મૌખિક રજૂઆત કરવા માટેનું જેમ ટીવીમાં આપણે બહસ કે ડિબેટ જોઈએ તો એ મૌખિક અભિવ્યક્તિ છે, એટલે કે એ મૌખિક અભિવ્યક્તિનું એક અત્યંત પ્રભાવશાળી એ महत्वपूर्ण स्वरूप है. वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है. ये वाद विवाद में कोई एक विषय से निश्चित કરવામાં આવે છે, કે નક્કી કરી લેવામાં આવે છે. પછી कुछ विद्यार्थी उस विषय में पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम में के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते. विद्यार्थी મિત્રો આપણા ક્લાસરૂમની અંદર પણ વિદ્યાર્થીઓના બે આપણે ગ્રુપ બનાવીએ, એક વિષય નક્કી કરીએ, પછી એક ગ્રુપનો વિદ્યાર્થી છે પોતાના વિચારો છે મજબૂત કરીને રજૂ કરે, જ્યારે સામેનો વ્યક્તિ એનો પ્રતિકાર કરતો હોય છે, એટલે એ પોતાના મતને વ્યક્ત કરે, વિષય એક જ હોય છે. તો આ પ્રકારની વાત છે અને શ્રોતાઓ છે એ આ તમારા વિચારો છે, તર્ક છે અને શાંતિથી એ સાંભળે, જેથી કરીને તમારી પણ બૌદ્ધિક શક્તિ અને વિચારવાની શક્તિ વધે અને સાથે સાથે તમારું જ્ઞાન છે એમાં વધારો થાય. એ પ્રકારની અહીંયા વાત છે. તો एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है, लेकिन एक वक्ता से પોતાના પક્ષનો વિચાર રાખે છે તો दूसरा वक्ता विपक्ष में, जो બીજો वक्ता है विपक्षની અંદર પોતાનો મત છે રાખે છે. इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है. અને જે પક્ષમાંથી કોઈ વ્યક્તિ વાત કરે ત્યારે વિપક્ષમાંથી એ વાતને એ કાપવા માટે ખંડન, એટલે કે જે આપવામાં આવેલો વિચાર છે એ વિચારને ઉપર પોતાના વિચારને મજબૂત રીતે રજૂ કરવા માટે પહેલા વિચારને એ ખંડન કરવામાં આવે અથવા તો એને નિમ્ન અથવા તો એને ઓછો બતાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે ત્યારે એને આપણે ખંડન કહીએ છીએ. કથન કે ખંડન કા અવસર મિલતા है. પછી એ કથનનો એ વિચારને એ ફરી પાછો પોતાના નવા વિચાર સ્વરૂપે મૂકવા માટેનો અવસર છે પ્રાપ્ત થતો હોય છે. તો એ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આ પાઠની અંદર આપણને નીચે दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 45 ઉપર એક ચિત્ર અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. તો એ ચિત્રને તમારે ધ્યાનથી જુઓ, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाए. तो ये चित्र છે, ચિત્રના આધારે આપણને ચિત્રની નીચે વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા છે. હવે એ 3 પ્રશ્નોને આધારે તમારે તમારા ક્લાસરૂમની અંદર અથવા તો તમે એ આધારિત પ્રશ્નોના વાદ વિવાદ કરવાનો છે. 2 ગ્રુપ બનાવી, એક ગ્રુપનો આપણે ધારો કે એ ગ્રુપ અને બી ગ્રુપ. એક પ્રશ્ન એવો છે કે દોનો ચિત્ર में क्या अंतर है. પહેલો પ્રશ્ન છે તો આપણે બંને ચિત્રનું આપણે અવલોકન કરવાનું, નિરીક્ષણ કરવાનું છે અને ધ્યાનથી જોવાનું છે. तो हम कह सकते हैं कि दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र नगर का यानी कि शहर का है. तो गांव के चित्र में हमें नदी दिखाई देती है और साथ साथ नदी के छोटे छोटे घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हमें ये गांव के चित्र में दोस्तों दिखाई देता है. फिर लोग मामूली कपड़े पहने हुए, यानी कि गांव के लोग जो होते हैं मामूली यानी कि सामान्य कपड़े पहने हुए हमें नजर आते हैं. लेकिन साथ ही गांव में हमें बड़ी शांति का वातावरण हमें दिखाई देता है. दोस्तों ये चित्र से हमें ऐसा महसूस होता है कि गांव के 2 चित्र છે, એક ચિત્ર શેનું છે, શહેરનું છે અને બીજું
નગરનું છે. પહેલું ચિત્ર આપણને છે એ ગામનું દેખાય છે અને ગામના ચિત્રની અંદર ખાસ કરીને એ કાચા મકાનો છે, નદી છે, નદીની આજુબાજુમાં ગામના લોકો સામાન્ય કપડાની અંદર આપણને દેખાય છે. નદીના ઘાટ ઉપર કેટલાક લોકો કપડાં ધોવે છે, કેટલાક લોકો એ નદીના ઘાટ ઉપર નાહે છે. સાથે સાથે કાચા મકાનો છે, સરસ મજાનું શાંત વાતાવરણ એ આપણને ગામડાના ચિત્રની અંદર દેખાય છે. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજું ચિત્ર જોઈએ તો બીજા ચિત્રની અંદર આપણને એવું લાગે છે કે ભાઈ એ જે નગરનું ચિત્ર છે એટલે કે શહેરનું ચિત્ર છે. શહેરના ચિત્રની અંદર આપણને મોટા મોટા आलीशान मकानों देखाए से, महलों जेवा, साथे साथे उसकी जो सड़क है यानी कि जो रास्ता है वो दोनों तरफ से चौड़ा है એટલે કે પહોળાઈ વાળા સરસ મજાના સડક અથવા તો એ રસ્તાઓ છે અને मकानों पर पाका है એટલે કે पक्के मकान है और साथ साथ सड़क पर वाहन चल रहे हैं. जो सड़क पर यानी कि रास्ते पर वाहन थे वह चल रहे हैं और वाहनों के कारण यहाँ पर शहर में शोर बपोर है, आवाज है. क्या है? वाहन के कारण शोर है, आवाज है. और साथ साथ लोग आधुनिक वेशभूषा में, दोस्तों जो शहर के लोग हैं वो आधुनिक नए नए कपड़े, आधुनिक जो फैशन वाले कपड़े नगर के लोगों ने पहने हुए हैं. तो इसी प्रकार से हम अपना मत से ये सामान्य तरीके से दोस्तों यहाँ पर रख सकते हैं. फिर हमको दूसरा सवाल किया है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है. दोस्तों कि भाई गाम અને શહેર એટલે કે ગામડા અને શહેરના જીવનની અંદર શું તફાવત છે અને સાથે સાથે આપણને એવું પૂછ્યું કે ભાઈ તમને શું ગમે છે, ગામડાનું જીવન તમને વધારે પસંદ પડે છે કે પછી શહેરનું જીવન તમને વધારે રુચિકર એટલે કે પસંદ પડે છે, જો પડે છે તો શું કામ, શા માટે. तो दोस्तों एना विषय अपने अपना विचारों से व्यक्त करवाना है. तो हम कह सकते हैं कि भाई गांव के जीवन में सादगी है और साथ साथ सरलता है. किसी भी तरह की बनावट हमें गांव के जीवन में यानी कि तड़क भड़क हमें गांव के जीवन में देखने को नहीं मिलती है. और लोग शांति से आपस में प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक यानी कि अपने अपने काम करते हैं और प्रेम पूर्वक रहते हैं. और साथ साथ नदी और कुएं का पानी गांव के लोग पीते हैं और वे अपने अपने खेतों में उगाया हुआ जो धान, जो अनाज है वह साथ साथ ही ताज़ी साग सब्जियाँ वह गांव के लोग खाते हैं. और लोग कच्चे घरों में रहते हैं और साथ साथ उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक है. यानी कि गांव के लोगों का जीवन एकदम सादगीपूर्वक होता है. जो अपने खेत में उगाए हुए जो अनाज है, साग सब्जियाँ है वह गांव के लोग खाते रहते हैं और गांव के जीवन के लोग एकदम शांति से, सादगी से वह रहते हो. और उसके अलावा शहर की यानी कि नगर की बात करें तो हम कि नगर के जीवन के लोगों में हमें तड़क भड़क देखने को मिलती है और बनावट उसमें अधिक होती है और साथ साथ लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं. ये शहर की यानी कि नगर की विशेषता है. और शहर के यानी कि नगर के लोग पक्के मकान में रहते हैं, आलीशान मकान में रहते हैं और साथ साथ वह नगर की सड़कों पर वाहन व्यवहार और बाजारों में काफ़ी शोर मचा हुआ रहता है. और वह बाजार से खरीदे हुए अनाज और साग सब्जी जो शहर के लोग खाते हैं क्योंकि उसके यहाँ खेत नहीं होते और खेत के अनाज गांव के लोगों की तरह शहर के लोग नहीं खाते. और साथ साथ लोग दुकानों में, बैंकों में, दफ्तरों में नौकरी करने के लिए या तो काम करने के लिए शहर में जाते हैं. और हम कह सकते हैं कि नगर के जीवन में, नगर के लोगों में ये जीवन में कभी शांति नहीं होती. वहाँ हर हमेश के लिए दौड़धाम होती रहती है. इसी प्रकार हम कह सकते हैं. साथ साथ लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है कि भाई शहर के लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है. यानी कि वहाँ के जीवन को शुद्ध हवा, प्रकृति का सुंदर वातावरण, खुले खेत खलिहान का वातावरण शहर के लोगों को यानी कि नगर के लोगों को बहुत कम मिलता रहता है. और नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन
ये पसंद है। कहते हैं, हम कहते हैं कि नगर का जीवन बहुत दोष है, लेकिन हमें वहाँ का जीवन बहुत पसंद, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित होते हैं, साथ साथ प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज, बाग बगीचे हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही मनपसंद शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा का भी हमें अवसर नगर के जीवन में मिलता है। और उनके साथ साथ हमें अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में शहर में हमें सभी प्रकार के जो सहायक साधन यानी कि संसाधन हमें शहर में उपलब्ध होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में मिलते हैं उतने हमें गाँव में मिलते नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन बहुत अच्छा यानी कि रुचिकर लगता है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, आप गांव के और नगर के जीवन के बारे में हम इस प्रकार के अपने अपने मत विशेषकर हम यहाँ पर रख सकते हैं। फिर अगला सवाल है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्या? कि भाई तालाब का जो जल होता है वह पीने के लिए योग्य होता है, लेकिन मित्रों तળાવનું પાણી છે આપણે એવો વિષય આપ્યો કે તળાવનું પાણી છે પીવા માટે યોગ્ય છે तो શું કામ અને નથી तो શા માટે? तो हम कहते हैं कि भाई तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं होता है, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है। जो तालाब होता है वो चारों ओर से बंद होता है, अर्थात वहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वही का वही पानी उसमें रहता है। और साथ ही उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी है, जो कचरे गंदगी, ये चारों ओर से बाहर से आकर उसमें मिलती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर उसमें सड़ते, यानी कि पेड़ वृक्ष होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो तालाब में गिरकर सड़ते हैं। साथ साथ लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, कुछ लोग वहाँ पर अपने जानवरों को भी वहाँ पर नहलाते हैं। यहाँ सारी गंदगी तालाब के जल से ये उन्हें दूषित करती है, इसलिए यह दूषित जल पीने से दोस्तों कुछ इसी प्रकार का रोग, जो हैजा होता है, जो कॉलेरा होता है, पेचिस होता है, इसी प्रकार का आदि नए नए प्रकार के रोग ये तालाब का जल पीने से होता है। इसलिए तालाब का जल पीने से हमारे शरीर में ये बीमारियां फैलने की पूरी संभावना होती है, इसलिए हमें तालाब का जल पीना योग्य नहीं है। इसी प्रकार का हमारा कुछ विचार है, मत है, यानी कि तर्क है। अब इसी प्रकार दोस्तों नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप इस विषय में एक पक्ष अपना विचार कारण से प्रस्तुत करिए। विद्यार्थी मित्रों अपने निबंध लखीए ने कि भाई विज्ञान, वरदान के પછી અભિશાપ, એટલે કે વિજ્ઞાન છે આપણા જીવનમાં વરદાન રૂપ છે કે શાપ રૂપ છે, એના વિશે તમારે તમારા પોતાના વિચાર વ્યક્ત કરવાના છે, જેના આધારે આપણે નીચે શબ્દો આપેલા છે: પ્રદૂષણ, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वॉर्मिंग। दोस्तों विज्ञानની શોધને કારણે આપણને કેટલા ફાયદા છે અને સાથે સાથે આપણા જીવનમાં એ ફાયદાકારક છે કે નુકસાનકારક, એટલે કે વિજ્ઞાનના ફાયદા કેટલા અને ગેરફાયદા કેટલા। તો આના આધારે આપણે એવું કહી શકીએ તો દોસ્તો આપણા પોતાના વિચારો એ માટે શબ્દો આપેલા છે कि भाई विज्ञान के कारण ही हम आज आधुनिक जीवन में जो नई नई अनुसंधान, जो नई नई खोज कि आज हम जो नए नए आधुनिक तकनीक या तो टेक्नोलॉजी के जो साधन होते हैं उनसे भुगत रहे, उसके जो विज्ञान के कारण ही हमें उपलब्ध हो रहा। साथ साथ आज हमें आरोग्य के लिए जो डॉक्टरी सेवाएं हैं, साथ साथ जो मेडिकल की जो सुविधाएं हमें विज्ञान के कारण ही मिल पाई। और साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो वाहन व्यवहार है, जो तेजी से हमें झड़प से हमारे स्थान को हमें एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा देता है, वह भी विज्ञान के कारण ही होता है। इसलिए विज्ञान हमारे लिए यहाँ वरदान रूप है। साथ ही दूरभाष यानी कि जो हमें मोबाइल टेलीफोन के द्वारा हम अपने नज़दीक के सगे संबंधी के साथ जो क्षण में पल में उनके साथ बातचीत कर लेते हैं, उनकी देखभाल पूछ लेते हैं, वह हमारे लिए वरदान रूप से कुछ कम नहीं हो पाएगा।
उसके साथ साथ कंप्यूटर दोस्तों, वो भी एक विज्ञान के आविष्कार के कारण हुआ है कि भाई आज कंप्यूटर में हम हमारी सारे की सारी जो रिकॉर्ड होते हैं, जो हिसाब होता है, सारी की सारी जो तकनीक होती है, उनके सहारे हम अपनी पढ़ाई से लेकर अपने हिसाब कामकाज सभी क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का आज भरपूर उपयोग करते हैं, तो वह भी हमारे लिए लाभदायक होगा। फिर दोस्तों कुछ ऐसी बातें भी है जो बिजली कि आज हम पंखे के नीचे, एसी के नीचे ठंडी हवा गर्मी में भी उसे आनंदपूर्वक खा लेते हैं, वह भी एक बिजली की शोध, वो भी विज्ञान का एक वरदान हो सकता है। पर दोस्तों इसके साथ साथ विज्ञान हमारे लिए कुछ अभिशाप भी है, इसके लिए हम ये शब्दों का प्रयोग, विज्ञान के कारण आज नए नए उद्योग, नए नए वाहन व्यवहार, उनका जो विकास हुआ है, उसके कारण आज प्रदूषण फैला हुआ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो प्रदूषण है वो विज्ञान हमारे ये जो अनुसंधान है उसके लिए हम प्रदूषण होता है, इसलिए हम उसे अभिशाप के रूप में देखेंगे। साथ साथ परमाणु बम, तो दोस्तों ये परमाणु बम होता है वह विज्ञान की शोध के कारण या तो खोज के कारण ही हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए ये परमाणु बम जो है वह हमारे लिए अभिशाप रूप कहेगी, क्योंकि इसके कारण कई निर्दोष लोगों की जान जाती है, कई लोगों को कई सालों तक इसके विपरीत परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। तो ये विज्ञान में एक खोज जरूर हुई है, लेकिन ये मानव जीवन के लिए ये वरदान रूप कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो गलत उपयोग हो जाएगा तो वह हमारे लिए कभी भी वरदान रूप नहीं होगा। साथ साथ यातायात हमने पहले बताई, वाहन व्यवहार हमारे लिए फायदा रूप। फिर ग्लोबल वार्मिंग, दोस्तों हम आज देख रहे हैं कि भी आज जो सारी की सारी ये जो विश्व है, दुनिया है, आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो दुनिया का जो तापमान होता है वह एक ज़्यादा औसत से बढ़ रहा है, और इसलिए हमारा जो वातावरण है, हवामान है, उसमें आज हम बदलाव देखते हैं कि भाई कभी कभी बरसात के समय काफ़ी धूप पड़ती है, यानी कि ठंडी के समय काफ़ी बरसात पड़ती है, जो माहौल, ये जो मौसम में बदलाव हमें देखने को मिलता है, तो ये आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के ऊपर आज दिन प्रतिदिन जो तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे लिए ये अभिशाप रूप होगी, वो वरदान रूप कभी नहीं होगी। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों में हमारा विचारों जो आया शब्दों आधार नक्की कराने તમારા મત પ્રમાણે, તમારા વિચારો પ્રમાણે એ વિજ્ઞાન વરદાન રૂપ કે અભિશાપ રૂપ છે એના વિશે તમારા વિચારો છે વ્યક્ત કરવાના છે। પછી આપણને પ્રશ્ન કર્યો છે, કોણ શક્તિશાળી है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण से बताए मित्रों, कलम અને તલવાર એ બેમાંથી શક્તિશાળી કોણ? કલમ શક્તિશાળી છે કે તલવાર? એના વિશે તમારે તમારા પોતાના વિચારો વ્યક્ત करवाना है। तो दोस्तों हम कलम से क्या क्या कर सकते हैं और साथ साथ हम ये तलवार से कौन कौन से अपने ये काम करते हैं, तो उसके बारे में आपको अपने जो विचार है उन्हें व्यक्त करना है। तो हम कह सकते हैं कि कलम लिखने का काम करती है और तलवार युद्ध में काम आती है। साथ साथ कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है, यानी कि कलम के साथ हमारे जो ये दिमाग की शक्ति है वह जुड़ी हुई है, और साथ साथ तलवार से उनके साथ शारीरिक शक्ति, यानी कि तलवार चलाने के लिए हमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और साथ साथ कलम कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि साहित्यिक विद्या लिखने का काम करती है, ताकि तलवार गले काटती है और खून बहाती है। तो इसमें दोनों का अलग अलग काम है, और हमें कौन ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसके बारे में अपना मत जो दोस्तों व्यक्त करना है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति और प्रकाश प्रसार। कलम हमें आनंद देती है, अच्छे साहित्य के द्वारा समाज को हम शिक्षित कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित करवा सकते हैं, साथ साथ लोगों को हम सुख शांति का संसार
कलम के अच्छे साहित्य के द्वारा करवा सकते हैं। वह लोगों को दिल को जीतने का काम करती है और साथ साथ वह बुरों को अच्छा बनाती है। कलम में दोस्तों ये ताकत होती है कि बुरे विचार वाले व्यक्ति को उसे अच्छा बनाने का काम वह करती है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि भाई रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बने, यानी कि रामायण जो कवि वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा लिखी उसके पढ़कर कितने ही सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। वह किसका काम है? कलम का है। साथ साथ गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए ज्ञान करवाया, तो ये कलम का काम है। और व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण आज भी मरकर जीवित है, क्योंकि वह उन्होंने लिखी हुई साहित्यिक रचना कलम के सहारे लिखी और वह मर गए हैं, फिर भी आज उसकी कलम की शक्ति के द्वारा आज भी वह अमर है और जीवित है। और इसी प्रकार कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति, रूसी, फिर ग्वालियर की कलम की ताकत से ही, यानी कि कलम की ताकत अपने विशेष होती है। जरा तलवार रक्षा का साधन जरूर है दोस्तों, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक रहती है, क्योंकि तलवार से कुछ समय तक रक्षा का साधन अवश्य है, लेकिन कुछ समय तक, जाके कलम की तक जो शक्ति होती है वो युगों युगों तक हमारे सामने रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों इसी प्रकार कलम और तलवार के बारे में आपको अपने विचार ये प्रकट करना है। फिर पेज नंबर ये अपने जो विचार अपने अपने थे, और यहाँ पर दोस्तों दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। एक यहाँ पर आपको तस्वीर जो यहाँ पर लेख दिया गया है, जिसमें नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें 424 प्रकाश वर्ष दूर है एक नया ग्रह। दोस्तों आपकी किताब में एक लेख जो शिकागो AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दी गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है कि वैज्ञानिकों ने, એટલે કે અમેરિકાની જે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રની જે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સંસ્થા નાસા દ્વારા એવું કહેવામાં આવે છે કે આપણી પૃથ્વીથી 424 પ્રકાશ વર્ષ દૂર એક પૃથ્વી જેવો એક ગ્રહ આકાર લઈ રહ્યો છે। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौर मंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में, એટલે કે આજે આપણી વૈજ્ઞાનિકો એવું માને છે કે ભાઈ 1 કરોડ એટલે કે 1.6 કરોડ વર્ષની આની ઉંમર છે, 1.6 કરોડ વર્ષની છે, અને સાથે સાથે इसका સૌર મંડળ એટલે કે એનું જે સૂર્યમંડળ ગ્રહનું છે એની એ હજુ કિશોરાવસ્થામાં, એટલે કે ભાઈ એનો જન્મ થયો છે હજી આપણે કેમ બાળક જન્મે ને 10 વર્ષનું થાય, એટલે કે એ 1.6 કરોડ વર્ષ છે છતાં પણ હજી એ કિશોરાવસ્થામાં છે, એટલે કે હજી એના કેટલા બધા કરોડો વર્ષ હવે પછીનો સમય છે એ રહેશે। આવું એ વૈજ્ઞાનિકોના મત પ્રમાણે એ, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक्सलाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया केरी सिसे के मुताबिक यह पृथ्वी जैसी ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था में है। એટલે કે અહીંયા એક વૈજ્ઞાનિક છે જેનું નામ છે કેરી સિસે, એમના મત પ્રમાણે એવું કહે છે કે ભાઈ એ પૃથ્વી જેવા જ ગ્રહ સ્વરૂપે એ જન્મ લેવા માટે બિલકુલ સહી યોગ્ય અवस्थાની અંદર છે એવું એ પોતાનું મત છે એ વ્યક્ત કરે છે। इस सौर मंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है, जो हमें चित्र में स्पष्ट तरीके से दोस्तों आपकी किताब में पेज नंबर 46 के ऊपर दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रिंग सौर मंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसे मिट्टी
पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा। एक दिवस अहींया आपणी जे पृथ्वी छे धरती छे एना जेवी ज माटी पत्थरों एना जेवुं स्वरूपे ए जन्म लेशे, जिसमें पानी भी मौजूद होगा અને સાથે સાથે એની અંદર પાણી છે પણ હશે। पत्थर से बना हुआ जन्म लेगा और जिसमें पानी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि पूर्व जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है। आ आपણા માટે ખરેખર એક दुर्लभ घटना कह सकाय, कारण कि और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। कि भाई बहार थी बर्फीलू जो अत्यारथी आपने स्पष्ट ये वैज्ञानिकों ने देखाय छे एना उपरथी एवुं लागे छे कि एक दिवस एनी अंदर अवश्य ए पाणी छे एनी अंदर ए मौजूद हशे। जे हालमां एक बरफ स्वरूपे आपने ए चित्रनी अंदर देखाय छे एनी फरती तरफ ये एक समय में पानी स्वरूपे एनी अंदर मौजूद हशे। आवुं वैज्ञानिकों नासाना पोतानो मत से व्यक्त करे छे। फिर उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिससे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट कोर का निर्माण हुआ। यानी कि ये जे ग्रह से जन्म ले रह्यो छे एनी धूल से एना पदार्थों से एना उपरथी ए पदार्थों से एमांथी ज આપણે જેવી રીતે આપણી પૃથ્વી જે પદાર્થોથી બનેલી છે એ પદાર્થોથી જ આ ગ્રહ છે એ બની રહ્યો હોય એવું વ્યક્તિઓ વૈજ્ઞાનિકોને એનું એવો अनुमान लगावाय छे। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, એટલે કે शिष्यના મત પ્રમાણે એ વાતથી પણ ઇનકાર ન કરી શકાય કે એક દિવસ वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे અને એક દિવસ ત્યાં આપણે જે પૃથ્વીવાસીઓ જે પૃથ્વી પર રહે છે ત્યાં એક દિવસ આપણી ધરતી જેવું જીવન છે એ પણ ત્યાં સંભવ છે, એ હોઈ શકે છે એવું એ शिष्य નામના વૈજ્ઞાનિક છે પોતાનું મત છે એ व्यक्त करे छे। उन्होंने कहा है कि वह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। एमना मत प्रमाणे एवुं छे कि भाई धरती के जन्म की घटना એટલે કે ધરતીનો જન્મ થાય ને એ ઘટનાને देखने जैसी એ अनुभव है कि भाई धरतीનો જન્મ થયો અને જે ઘટના આપણા માટે એક अलग अनुभव થાય એ પ્રકારની આ જે નવા ગ્રહની ઘટના ये जो बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, ये शिष्य अपना जो अनुमान अपना मत यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचाने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकता है। दोस्तों कि भाई एने अपनी पृथ्वी धरती जेवो ग्रह बनवा माटे 1.6 करोड़ वर्ष तो थई चूक्या छे, छतां पण हजी शुं कहे छे कि 10 करोड़ वर्ष हजू पण लागी शके छे। त्यारे ए जे बहुत दूर जो जन्म ले रहा ग्रह हमारी धरती जैसा यानी कि हमारी पृथ्वी जैसा वह लग सकते हैं। तो दोस्तों एक ये वैज्ञानिक घटना है और ये नासा की जो दूरबीन है उन्होंने ये पृथ्वी के जन्म की जो तस्वीर यहाँ पर दी है वह हमारी किताब में यहाँ पर दी गई है। और ये हमारी जो हिंदुस्तान टाइम्स जो अंग्रेजी अखबार है जो अंग्रेजी छापू है एनी अंदर 5મી ઓક્ટોબર 2007 ના દિવસે विद्यार्थी मित्रों आ तस्वीर એ છાપવામાં આવી હતી જે આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર અહીંયા મૂકવામાં આવી છે। બરાબર મિત્રો, હવે આની અંદર આપણને બે પ્રશ્નો આપેલા છે મિત્રો કે અંતરિક્ષ की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। तो આપણે આ જે ઘટનાને આપણે વાંચીને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો એના આધારે આપણે જવાબ આપી શકીએ કે ભાઈ अंतरिक्ष की इस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दोस्तों आपको सवाल पूछा जाए कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की इस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। और दूसरा सवाल है पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है।
કે ભાઈ પૃથ્વી જેવો ગ્રહ બનવા માટે એ અંતરિક્ષમાં કેવા પ્રકારની સ્થિતિ જરૂરી છે, તો આપણે પાઠની અંદર સમજ્યા તો हम कह सके पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद है और इसके साथ धूल मिट्टी की परत है कि भाई पृथ्वी જેવો જન્મ સ્વરૂપે ગ્રહ લેવા માટે તો એમાં તો પાણી હોવું જોઈએ, સાથે સાથે ધૂળ અને માટી નું आवरण છે, परत છે, ये પણ એની અંદર હોવું જોઈએ। ऐसी चट्टानें हो जिससे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ અને એવા પથ્થરોની ચટ્ટાનો જેના કારણે પૃથ્વીનો જે ઉપરનો ભાગ છે માટી ને રેતી ને ઉપરનો જે ભાગ છે એનું નિર્માણ થાય। તો આ વસ્તુ આવશ્યક હોય તો જે પૃથ્વી સ્વરૂપે નવા ગ્રહ છે એને આપણે એના જેવો જ એને ગણતરી અથવા તો ગણી શકીએ। આ વસ્તુ આ નવા ગ્રહની અંદર વૈજ્ઞાનિકોને મોજૂદ એ દેખાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આ જે લેખ છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપ્યો છે, ધ્યાનથી બે વખત વાંચજો જેથી કરીને તમને સ્પષ્ટ રીતે આ શું કહેવા માંગે છે। જે આપણે અહીંયા સમજ્યા કે પૃથ્વી જેવો જ ગ્રહ છે, એટલે 1.6 કરોડ વર્ષથી એ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે, આજે કિશોરાવસ્થામાં છે અને હજુ પણ પૃથ્વી જેવો ગ્રહ બનવા માટે એને 10 કરોડ વર્ષનો એ સમય લાગશે અને એ પૃથ્વી જેવો જ, કારણ કે એની ફરતું એ બરફના કણ છે જે પાણી સ્વરૂપે મોજૂદ છે, એની અંદર ધૂળ માટી પથ્થરો બધી વસ્તુ છે આવશ્યક હોય એવું સ્પષ્ટ વૈજ્ઞાનિકો અનુમાન કરે છે। એટલા માટે આજે આપણી ધરતી અથવા તો પૃથ્વી જેવો ગ્રહ એક સમય ઉભરીને આપણી સામે આવશે, પરંતુ એના માટે હજુ 10 કરોડ વર્ષ સુધી આપણે રાહ જોવી પડશે। એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધન છે, અમેરિકાની ખ્યાતનામ સંસ્થા જે નાસા છે એના દ્વારા અહીંયા એ રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન છે રેખા ખીંચકર સહી જોડ મિલાઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે આ વિડિયો લેક્ચરને અહીંયા રાખીએ છીએ। હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંથી આગળ પાર્ટ 2 ની અંદર આગળનો અભ્યાસ કરીશું।